Hey everyone, in this video I would like to discuss today's lead code contest, that is weekly contest 509. So let's start with the first problem. So here is our first problem. The first problem says that you are given an integer array nums, and digit range of an integer is defined as the difference between its largest digit and the smallest digit. For example, the digit range of this is this. The largest digit is 7, the smallest digit is 2. So its digit range is 7 minus 2 equals to 5. You need to return sum of all integers in nums whose digit range is equal to maximum digit range among all integers in the array. So the problem is pretty simple. You just need to do whatever is said into this problem, right? For each integer in nums, find the digit range, right? And let's take the maximum digit range. Then you need to calculate the sum of all integers whose digit range is equal to this maximum digit range, right? So let's just implement it. Max, it will store the maximum digit range, and let's also take a variable sum. Also, let's create a function to find digit range for an integer n. Max digit and also take min digit. Initialize max with 0 and min with 9. Now iterate over all of the digits of n. Maximize mx to the current digit, minimize mn with the current digit. At the end, return their difference. Here, iterate over each integer in nums. If check if mx equals to digit range of u, right? In this case, what you will do is you will add this integer into the sum. Else, if mx is less than the digit range of u, in this case you will update your mx with the digit range of this particular integer and assign sum equals to u. At the end, return this sum. Okay, so for first sample, y is output equals to 0. What wrong we did here? This is okay. Also divide n by 10. Okay, so 6074. For the second sample, it is 990. Great, so let's submit it. Okay, so let's move to the second problem of this contest. In this problem, you are given two strings s and t consisting of lowercase English letters. You may choose at most one index in s and replace the character at that index with any lowercase English letter.
Return true if it is possible to make S a subsequence of T, otherwise return false. A subsequence is a string that can be derived from another string by deleting some or no characters without changing the order of remaining characters. Great. So this is also a pretty simple problem. You are given two strings S and T, okay, and you can change at most one character in S to any other lowercase English letter, and finally you need to check whether your S is a subsequence of string T or not, right? So let's take an example of first sample. Okay, and okay, so first let's see if S, without changing any character in S, first let's see if S is a subsequence of T or not. You can see that S is a subsequence of T. How? Because you can pick these characters corresponding to these indices, that is, you pick 0, that is C, then your A is at index 2, then your T is at index 3. So if you pick characters corresponding to these indices, that is, corresponding to 0 you have C, corresponding to 2 you have A, and corresponding to 3 you have T. Now this is your subsequence cat and this is equals to S. So without changing any character, your S is already a subsequence of T. So you will return true here, right? Okay, and let's also take an example of this sample. Okay, now let's check without changing any character if S is a subsequence of this or not. You can check that S is not a subsequence of this, right? Because clearly it has 5 characters and it has also 5 characters, so it is not a subsequence. And also you can also check that you, after changing any of the characters, it is impossible to make S equals to T, right? Why I'm saying S equals to T? Because S should be subsequence of T, and we know that the number of characters in S and T are equal. So after changing any of the character to any other English alphabet character, lowercase English alphabet character, then your S must be equals to T, right? Because length of both of these are equal. Now you can observe that you can change any character to any other English lowercase alphabet character, and it is impossible to make S equals to T. So in this case your answer will be false. Okay, you can try yourself some of the examples. Let's say change P to A, right? If you change P to A, then your remaining characters should be equal. L is not equals to P, then this is not a subsequence, right? If you do not change P, right, then you will not be able to make S equals to P because P is not equals to A. So in this case your answer is false. So how you will solve for a general S and T, right? So let's say this is your string S1 S2, these are your characters, and this is, let's say, your characters of T string. Let's say this is of M length. Then how you will solve this problem, right? Okay, to solve this problem what you will do is you will keep an array, right? So let's say you iterate from left to right and you will make an array of, let's say, a maximum of size m. So what does this store is, maximum of I will store maximum
prefix, maximum prefix length that can be formed by first I characters of T, right? Maximum prefix length of S, maximum prefix length of S that can be formed by first I characters of T. By this, what does I mean is, you have a prefix of length I plus 1, that is first I plus 1 characters. Now what you will do is, let's say if I plus 1, we are considering zero based indexing, right? So okay, so let's consider zero based indexing. Okay, so you have a prefix length of I plus 1, that is you have characters up to Ti. Now you want to pick a subsequence of these characters and you want to find out the maximum prefix length of S you can make. This is very easy. What you will do is, you will iterate T from left to right. Okay, so you will take initially two variables, I equals to 0, j equals to 0. I is the pointer corresponding to your T string and j is the pointer corresponding to your S string. Now what you will do is, you will move one position forward, right, in your T string, and what you will check is, you will check whether your S of I equals T of I, let's say you will check whether T of I equals to S of j, right? If this is the case, then what you will do is, you will increase your j by 1, right? And you will assign mx of I equals to j, correct? And this is for the I, and you will increase I by 1. So basically you will run a for loop for I. So this thing is inside, so you have initialized, so you are running a for loop, right, from I equals to 0 and I less than n, I plus plus. Okay, and you have also initialized an integer j equals to 0. J is the pointer corresponding to your S string and I is the pointer corresponding to your T string. Okay, and you will increment I one position each time. This simply you are running while for loop for I, and for each I you will check whether your T of I is equals to T of S of j. It means if your T of I is equals to S of j, it means you are able to increase one length. You are able to uh, find a character corresponding to your Sj in the string T, then you will increase your j by 1, right? And similarly assign maximum of I equals to j. So this is how you can calculate this array mx. So basically what we have calculated is, we have calculated for each index in T, right? We have calculated what is the maximum prefix, maximum length of prefix in S we can form using the characters from T0, T1 up to Ti. This is we have calculated in this mx. Now what we will do is, we will similarly calculate the suffix also, right? Similar suffix. What you will do is, you will iterate from left to right. You will try to calculate, let's say this is the
any I dash, right? I dash, or this is m minus 1. We are considering zero based indices. Okay, so this is your I dash and this is your m minus 1. Now similar thing you also calculate for suffix. You will calculate what is the maximum length of suffix of string s you can form using the characters ti dash plus 1 up to tm minus 1. So basically you want to find what is the maximum length of suffix of x you can form with this suffix of t, right? Then what you will do is you will just do uh, let's say now you know that if you know both of these arrays mx of I, which contains prefix values, and let's say you also know mx dash of I, right, which stores the maximum suffix, right? Maximum suffix you can maximum suffix length you can obtain from indices I plus 1, I plus 2 up to m minus 1 of string t. Once you know both of these arrays, now what you will do is you will check for each integer in for you will check for each index I, right? For each index I you will check whether you whether your let's say what I want to say is for each index I you will check that this is your s, right? S. For each index I you will check that whether you are able to find this prefix in t, right? And also you are able to find this suffix in t, right? Up to let's say this is j, right? Means it means that you will for each index I you will check that whether you are able to find this prefix in string t, right? And you are also able to find this suffix in this string t. And why I written j here, I just want to say that these two prefix and suffix must be disjoint. They must be disjoint. They should not be overlapping, right? So if you are able to find this prefix and suffix disjoint, then you will say that it is possible to change this character. What you will do is you will change this character to some any other character, right? And to any other character, let's say j, and then you can make you can say that you have made s a subsequence of t, right? Okay, so this was the logic for this problem solution. Let's also implement it. If you are not able to understand how we are going to calculate mx and mx dash and how we are checking this condition, let's move to the code, right? Let's implement it. First n is the size of your s, m is the size of your t string. Okay, now let's calculate this mx. Mx means the maximum mx of m, right? mx of m ये क्या है? mx of m, mx of I is the maximum prefix length you can make from using the characters t0, t1, t2 up to ti. Let's run this loop. J equals to 0, I less than n, I plus plus, I less than m. We are iterating over t, right? So please note that I is the pointer corresponding to your t array and j is the pointer corresponding to your s string, t string and s string. Okay, now here you will check whether
S of I, T of I is equals to S of j. If this is the case, then what you will do is you will increase your j by 1. Okay, and here you will assign mx of I equals to j. Okay, once we have calculated this, now what you will do is you will iterate from left to right, means right to left, in reverse order. Here you want to calculate the maximum length of suffix you can form using the characters ti, ti plus 1, ti plus 2, ti plus 2, ti plus 3 up to tm minus 1. I greater than, so let's iterate from right to left. I equals to m minus 1, I greater than 0, I minus minus. Also take the pointer corresponding to your s, that is j. Here what you will do is you will check whether t of I equals to s of j. If this is the case, then you will decrease j by 1. Okay, now what you want to check is you want to check whether let's say you have you want to check whether you have kept this index j, right, separately. Means you will change any one of the letter from sj to si. Okay, and now what you want to do is you want to check whether if you are able to form this prefix, right, you want to check whether you have left out this character so that you will change si to sj. Now you want to find if it is possible to make this prefix, right, prefix subsequence equals to this prefix, and you want to check whether if you are able to find this suffix as a subsequence of as a subsequence of suffix of t of j plus 1, t of j plus 2 up to t of m minus 1. How you will check? This is also simple. You will check with this condition: if s of mx of I minus 1, if mx of I minus 1 is greater than or equals to j, right, if mx of I minus 1 is greater than or equals to j, by this what does it mean is it means that आपने I से आगे तक मैक्सिमम सफिक्स कितना बना लिया, मैक्सिमम सफिक्स बना लिया आपने j plus 1, j plus 2, j plus 3 अप टू n minus 1, राइट. ये सफिक्स तो आपने ऑलरेडी बना लिया. अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रीफिक्स ऑफ लेंथ कितना रिक्वायर्ड है, प्रीफिक्स ऑफ लेंथ j ही रिक्वायर्ड है. तो अब इसमें फाइंड कर लो कि i को छोड़ के मतलब जो i माइनस 1 तक का जो प्रीफिक्स है, इफ यू आर एबल टू मेक इट्स लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू j, देन इट्स पॉसिबल, राइट. अदरवाइज रिटर्न फॉल्स.
इसमें कुछ बेस केस भी हैंडल कर लेते हैं कि इधर लेट्स से इफ your mx of m minus 1, right, is equals to n. This means you are already able to find a subsequence of s in t without changing any other character. इसमें भी ये बेस केस चेक कर लेते हैं कि if इधर एक चीज़ और चेक कर सकते हैं हम लास्ट कैरेक्टर को छोड़ ही देते हैं, राइट। अगर हम इससे n-1 लेंथ फॉर्म कर पा रहे हैं then what we will do is we will simply change the last character to any other character. if m is if n is less than 2 or mx of m minus 2 equals to n minus 1 then return true. सिमिलरली इधर भी ये बेस केस हैंडल कर लेते हैं इफ mx of m minus 2 equals to n minus 1 then return true. mx of I, if mx of I and I should be greater than 0, right, then return true. इसके अलावा कोई बेस केस और रहता है इसमें ऑल्सो इधर आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि m शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ m इज लेस देन 2 है इन दैट केस क्या होगा, ये आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, राइट, नेगेटिव चला जाएगा एंड दैट्स we don't want. Okay, so these are the only base cases we have. Let's see if anything else we need. Okay, so let's run this test case. For first one it is true. Integer out of bound जा रहा है क्या अभी भी कहीं? नहीं, इधर हम ये चेक करें ना कि if I is greater than 0 and j equals to 0, right, मतलब कि हमने j equals to 1 2 3 अप टू n-1 तक का सफिक्स फाइंड कर लिया है करंटली, तो हम जस्ट ट्रू रिटर्न करा देंगे क्योंकि सिर्फ एक ही करेक्टर बचा है अभी और वो एक करेक्टर तो चेंज कर ही सकते हैं एज गिवन इन द प्रॉब्लम, एट मोस्ट वन करेक्टर वी कैन चेंज. रन टाइम एरर, अभी भी कोई और मिस्टेक रह रही है. ओके, सो इधर आप चेक कर लीजिए कि आई शुड बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा. For first it is true, for second it is false. So let's submit it.
आई थिंक वी मिस्ड समथिंग. ओके, इसको एक बार रीइटरेट कर लेते हैं. राइट, एम एक्स ऑफ आई में क्या, एम एक्स ऑफ आई में क्या स्टोर कर रहे हैं? एम एक्स ऑफ आई में स्टोर कर रहे हैं द मैक्सिमम प्रीफिक्स लेंथ फ्रॉम एस वी कैन गेट. ओके, इफ टी ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ जे, then we will increment this j and we will assign mx of i equals to j. ओके, ये हमने करेक्टली फाइंड कर लिया. ग्रेट. अब हम चेक करते हैं कि इफ़ n इज़ लेस देन 2, n इज़ लेस देन 2 मतलब एक ही करेक्टर है s में, तो ऑब्वियसली आप इसको चेंज कर भी सकते हो और ना भी करो, अगर वो मिल जाता है t में देन इट्स ट्रू. सो अगर n इज़ लेस देन 2 देन इट्स ऑलवेज पॉसिबल. गुड. और अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि हम 0 से m-2 तक अगर हम n-1 लेंथ का सफिक्स बना पा रहे हैं, n-1 लेंथ का प्रीफिक्स बना पा रहे हैं, देन ऑल्सो वी कैन रिटर्न ट्रू, बिकॉज लास्ट कैरेक्टर तो हम ऑलवेज चेंज कर सकते हैं. अब ये भी सही है. अब इधर आते हैं तो वी चेक इफ टी ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ जे, तो हम एक से डिक्रीज कर देंगे. गुड. अब इधर हम चेक करेंगे कि i को छोड़ो, अभी i+1 से आगे जितने भी हैं ना, नहीं मतलब i तक तो हमने, लेट्स से हम क्या चेक करें कि t ऑफ i+1, t ऑफ i+2 अप टू t ऑफ m-1 तक, ये जो सफिक्स है इससे हम j+1 j+2 अप टू jn-1 तक का सफिक्स फॉर्म कर सकते हैं. राइट. तो अब हमें चेक करना है कि i-1 को हम कैसे न कैसे किसी अनदर कैरेक्टर में चेंज कर देंगे. अब हम चेक करते हैं कि i-2 mx ऑफ i-2 से अगर हम j लेंथ का प्रीफिक्स बना पा रहे हैं, राइट, j लेंथ का प्रीफिक्स बना पा रहे हैं, देन वी विल रिटर्न ट्रू. ओके. एंड और इधर भी बेस केस चेक कर लेते हैं कि इफ i इज ग्रेटर देन 0 एंड j इक्वल्स टू 0, देन ऑल्सो वी विल रिटर्न ट्रू. Expected false. Okay, let's submit it. ग्रेट. सो वी हैव सॉल्व्ड इट. आप समझ गए होंगे, है ना, हमने कैसे सोल्व किया इसको. पहले प्रीफिक्स लेंथ फाइंड कर लिया. फॉर ईच इंडेक्स वी हैव फाउंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्रीफिक्स वी कैन फॉर्म. देन हम इस लूप में क्या कर रहे हैं, हम सफिक्स फाइंड कर रहे हैं कि सफिक्स ऑफ टी से हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ सफिक्स कैसे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सफिक्स इन एस कितना फाइंड कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है, मतलब i-1 को एक बार आप छोड़ दो, i से m-1 तक का सफिक्स लो t से, आप देखो कि इसका मैक्सिमम लेंथ कितना फाइंड कर सकते हो. अब आपका इसका मैक्सिमम लेंथ आप फाइंड कर सकते हो, आपके पास है j. अब आप सिंपली क्या करोगे, आप j लेंथ का प्रीफिक्स फाइंड करना चाहोगे s में, करस्पॉन्डिंग टू t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू i-2, राइट. सो मैक्सिमम ऑफ i-2 से अगर आप j लेंथ का प्रीफिक्स फाइंड कर रहे हो, देन you know that it's always possible to find its subsequence in t after changing one of the character from s. So this is how we have solved this. Let's move to the third problem. Okay, so you are given an integer array nums of length n. Alice and Bob are playing a game. Alice chooses an integer k such that k is greater than 1, two integers l and r such that l and r should be in this range 0 to n, l should be less than equals to r. Initially both Alice and Bob's score are 0 for each index I in the range l to r inclusive.
If nums of I is divisible by k, then Ali's score increases by nums of I, otherwise Bob's score increases by nums of I. Finally, we will calculate the score difference between Ali's score minus Bob's score. Alice wants to maximize the score difference, and if there are multiple values of k that achieves the maximum score difference, she chooses the smallest such k. At the end, you need to return the product of maximum score difference and the chosen value of k. Since the result can be large, return it modulo 10 to the power 9 plus 7. So the problem statement is pretty straightforward. You are given an integer array nums, right, of length n, and Alice and Bob are playing a game where Alice will pick an integer k and a range L to R. Now she will calculate the sum over all integers in range L to R whose value is divisible by k and add into its score. If some of the numbers in this range are not divisible by k, then their values will be added to Bob's score. At the end, you will find the difference in the score and multiply it by k. You will return it, and here Alice will pick k, L and R such that the score of Alice is maximum. Okay, so let's try it out. First sample test case. This is the array we are given. So optimally, if you look here, optimally Alice will try to maximize its score, and she can pick any integer k greater than 1, right? So obviously you will see that she can pick this range and k equals to 2, right? K equals to 2 she can pick, and she can pick this range. So in this range you see that all of the integers are divisible by 2, so definitely they will go into Alice's score. And Bob's score, there are no numbers who are not divisible by 2, right? So Bob's score is 0. So the difference is sum of these numbers minus 0, that is 18, and your value of k is 2. So for this particular case your answer will be 36, and this is the answer. Okay, so let's solve this problem for a general nums of length is 1000 and nums of I is 10 to the power 6. So now let's solve for a general nums array, right? Let's say you are given this nums array where nums of 1, nums of 2 up to nums of n. ओके, अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? आप इसको सोल्व करने से पहले एक बार एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि व्हाट आर द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के एलिस कैन पिक, राइट? अब इसके लिए एलिस ऑप्टिमली क्या क्या टोटल वैल्यूज पिक कर सकती है? शी कैन चूज, observe that she can choose all of the integers which are, let's say she will try to choose any of the integer who is at least a divisor of any one of the integer in nums array, right? क्योंकि आप सपोज करो, let's suppose if Alice chooses an integer who does not divide any of the integers in nums, right? In that case Alice score will be 0 no matter what range no matter what range she picks, and Bob's score will always be greater than 0, right? So Alice will definitely try to choose an integer k who is a divisor of at least one of the integers in nums, right? Because that's how she can maximize her score. So brute force अप्रोच में आप क्या कर सकते हो कि फाइंड
all of the divisors, right, of each of the integers in nums array, right. आप एक डिवीजर अरे बनाओ, डिवीजर्स, इसमें आप d1 d2 d3 अप टू m-1। आपने क्या किया है, आपने सिंपली सारे इंटीजर्स को पकड़ा, राइट, फ्रॉम नम्स, हर एक के डिविजर्स निकाले और डी अरे में ऐड कर दिए, राइट। सेट डी, इसको सेट बोल देते हैं क्योंकि वी ओनली वांट टू फाइंड द टोटल डिस्टिंक्ट डिविजर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज इंटीजर्स। सो आपने नम्स को पकड़ा, इसके सारे डिविजर्स फाइंड किए और डी सेट में डाल दिए। सिमिलरली नम्स ऑफ 2 को पकड़ा, you found all of the divisors of nums of 2 and put it into this set, D set. Similarly for last. So आपने you have calculated, you have found all of the divisors of all of the integers in nums array and put those divisors into this D set. Now these are your divisors, right? Now what you will do is you will do brute force, right? For now we are just trying to solve this problem using brute force algorithm. So what you will do is you will pick any integer, any divisor as your value of k. Let's say you pick d3, third element of your divisor. Once you have picked the value of k, now you want to maximize your, now you want to pick L and R such that your score of Alice is maximum, right? You want to maximize the score of Alice and you will pick L and R greedily, right? That maximize the score of Alice. अब L and R कैसे pick करोगे, right? One possibility is you can just brute force it, right? आप हर एक सबरे pick कर लो, you will pick each of the subarray of nums and you will find the score. स्कोर फाइंड करना तो बहुत सिंपल है, जो प्रॉब्लम में गिवन है वही इंप्लीमेंट करना है। क्या, इस सबअरे पर फ्रॉम L to R you will add the score into Alice score whose value is divisible by k, right? So let's see if nums of I is divisible by k, you will add into Alice score, right? Otherwise you will add it into the, let's say Alice plus equals to nums of I, or I belongs to L to R. If nums of I is divisible by k, then आप Alice के स्कोर में ऐड कर दोगे। Otherwise, if nums of I is not divisible by k, then you will add it into the Bob's score. ग्रेट, अभी ब्रूट फोर्स से हो जाएगा। बेसिकली ये n स्क्वायर में चल जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में, और ये आप इटरेट कर ही रहे हो। बट ये डेफिनेटली आपका इसमें इस रेंज में आप नहीं सोल्व कर पाओगे, क्योंकि n स्क्वायर आप इसमें इफ़ यू सी n इज़ ऑर्डर ऑफ 1000, सो आपका n स्क्वायर चल जाएगा 10⁶। So maximum allowed time complexity for this test case is n square. आपको n square में ही पास करवाना है, n square से ज़्यादा आपका पास नहीं होगा। But in this case we see that our solution is n square तो iterate में ही हो गया इसमें, and now you are also iterating over divisors। अब आप बताओ कि total number of divisors कितने हो सकते हैं। total number of divisors आपके हो सकते हैं n into root of n, राइट। यह होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप समझा सकते हो मेरे को कि ये n इंटू रूट ऑफ n कैसे हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। रूट ऑफ एक्चुअली नम्स ऑफ मैक्स, राइट। ये होगा आपका n नहीं,
नम्स ऑफ आई का मैक्स, वो कि 10⁶ है। ये क्या है, नम्स ऑफ आई की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब आप समझा सकते हो मेरे को कि ये टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ये कैसे हो सकते हैं। आप बोलोगे कि हाँ सिंपल है, क्योंकि हर एक डिवीज़र के टोटल हर एक इंटीजर के इन नम्स ऑफ आई, हर एक इंटीजर के टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर के। लेट्स से कोई इंटीजर एक्स है, उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हो सकते हैं, √x हो सकते हैं, राइट। सो और आपके टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं अरे में, n है, तो टोटल इतने आपके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हो सकते हैं। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की, n³ इंटू रूट ऑफ n मैक्स, नम्स ऑफ आई मैक्स। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू पास, राइट, ओनली n² ही पास हो सकता है। तो इसको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब पहले तो हम ऑप्टिमाइज इस पार्ट पे करते हैं, इस पार्ट पर, कि इस पार्ट पर टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज ऑफ k जो कि एलिस पिक करेगी वो हम मिनिमाइज करेंगे, राइट। इस सेट को हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। इस सेट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यू ट्राई टू सी दैट आप ये जो डिविजर्स होंगे ना, आप ओनली प्राइम डिविजर्स ही कंसिडर करोगे, राइट। क्योंकि एलिस विल एलिस विल पिक अ वैल्यू ऑफ k which can divide maximum number of integers, right, so she will definitely pick a prime divisor, right, क्योंकि उसको बस डिवाइड करने से मतलब है, एंड ऑब्वियसली प्राइम डिविजर होगा वो मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड करेगा। सो शी विल ओनली पिक द प्राइम डिविजर, शी विल ट्राई आउट ऑल द प्राइम डिविजर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज इंटीजर्स। अब हम इस सेट को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया। अब इस सेट में क्या स्टोर करेंगे, ये जो सेट है ना, इसमें हम सारे इंटीजर्स के इन नम्स अरे में हर एक इंटीजर के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे और आप उसको डी में ऐड कर दोगे। तो अभी फाइनली ये जो सेट है ये इट कंटेन्स ऑल ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल ऑफ द इंटीजर्स इन नम्स अरे। अब अली सिमिलर थिंग फॉलो करेगी, सिमिलर प्रोसेस। शी विल पिक एनी इंटीजर इन दिस डी सेट, राइट, एंड असाइन इट टू के। अब उसको के पता लग गया, नाउ शी कैन ब्रूट फोर्स ओवर L2R। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब भाई ब्रूट फोर्स ओवर L2R ये तो n² ही टाइम लेगा। नाउ आपको पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स कितने होंगे, ये होंगे आपके n इंटू लोगरिथमिक ऑफ मैक्सिमम ऑफ नम्स, राइट, नम्स ऑफ आई मैक्स। इसको सिंपलिसिटी के लिए एन मैक्स बोल देते हैं, मतलब, या फिर ए मैक्स बोल दो, फिर ए इज़ द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इन, या फिर एम एक्स बोल दो सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। एम एक्स, और एम एक्स क्या है, एम एक्स इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दीज इंटीजर्स, राइट, इन नम्स अरे। सो अभी आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लेट्स री राइट इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर इटरेटिंग ओवर ईच ऑफ द सब अरे n², है ना, L2R के लिए। और टोटल नंबर ऑफ ये डिविजर्स कितने हैं, दीज आर वी आर ओनली स्टोरिंग द प्राइम डिविजर्स। सो ये हैं आपके n इंटू log ऑफ मैक्स। ये क्यों है, क्योंकि हर एक इंटीजर का
हर एक इंटीजर, फॉर ईच इंटीजर nums of I, what is the maximum number of prime divisors it can have? The maximum number of prime divisors it can have is log of nums of I, right? So this is the final time complexity, that is n cube log of mx. ठीक है, दिस इज गुड. अब इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं, अभी भी ये पास नहीं होगा. अब आप क्या करोगे, अब आप अब आप किसको इम्प्रूव करोगे, अब आप इस थिंग, यू विल नाउ इम्प्रूव दिस थिंग, राइट? You will optimally, you would like to optimally pick the value of L and R, right? इसके लिए आप क्या करोगे कि you will iterate over, let's say R equals to 0 to n minus R equals to 0 to n minus 1, राइट? इस नम्स अरे पर इटरेट कर रहे हो, आप R को फिक्स कर रहे हो, राइट? R पे इटरेट कर रहे हो लेफ्ट टू राइट. अब आप L को ऑप्टिमली फाइंड करना चाहोगे, राइट? यू वुड लाइक टू फाइंड वैल्यू ऑफ L ऑप्टिमली, ऑर्डर ऑफ 1 में फाइंड करना चाहोगे. तो इसके लिए आप कैसे फाइंड करोगे कि यू वुड लाइक टू हैव ए प्रीफिक्स सम, राइट? लेट्स से प्रीफिक्स, राइट? प्रीफिक्स ऑफ आई क्या स्टोर करेगा, लेट्स से प्रीफिक्स ऑफ आई स्टोर करेगा 10, प्रीफिक्स ऑफ आई स्टोर करेगा आपका प्लस नम्स ऑफ आई. कौन से केस में? इफ नम्स ऑफ आई इज डिविजिबल बाय के, राइट? अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक बार आप इसको नम्स ऑफ अरे को ट्रांसफॉर्म कर दो फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन. मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना कि आप प्रीफिक्स अरे फाइंड करोगे, राइट? वेयर प्रीफिक्स ऑफ आई विल स्टोर द सम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम nums dash array. Let's say first calculate nums dash array, nums dash of I. ये क्या होगा ना, ये होगा if nums dash of I, if nums of I is divisible by k, then आपकी वैल्यू ऑफ, इफ दिस इज द केस, देन आपकी वैल्यू ऑफ nums dash of I क्या होगी? इन दिस केस योर वैल्यू ऑफ nums dash of I विल बी nums of I. Otherwise, if it is not equals to 0, in this case your value will be minus nums of I. nums dash कैलकुलेट कर लिया आपने. सिंपली ये क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम? सिंपली वही कि हम एलिस का स्कोर मैक्सिमाइज कराना है और एलिस के स्कोर में पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर देंगे और बस बेसिकली हम डिफरेंस कैलकुलेट करें और बेसिकली डिफरेंस को मैक्सिमाइज करा देंगे, राइट? कि एलिस अगर ये डिविजिबल है के से तो पॉजिटिव ले लेंगे इसकी वैल्यू, अदरवाइज नेगेटिव ले लेंगे. नाउ लेट्स ऑल्सो क्रिएट ए प्रीफिक्स अरे, प्रीफिक्स सम अरे, राइट? Let's take a prefix sum array. Prefix sum array where prefix sum of I क्या कैलकुलेट करेगा? Prefix sum over this nums I array, right? Nums dash of 0 plus nums dash of 1 plus up to nums dash of I. बेसिकली प्रीफिक्स सम ही है.
आपने एक बार प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया, अब आप आर पे हो, राइट, यू आर करंटली एट आर। अब आप एल क्या चूज करना चाहोगे? यू वुड लाइक टू चूज एल सच दैट प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ एल माइनस वन, दिस इज मैक्सिमम। इसको मैक्सिमाइज कराना चाहोगे? इसको मैक्सिमाइज कराने के लिए आपका आर तो फिक्स्ड है, क्योंकि आर पर तो आप इटरेट कर रहे हो। यू वुड लाइक टू पिक ए वैल्यू ऑफ एल सच दैट दिस इज मिनिमम। इसको मिनिमाइज कराना चाहोगे तो आप एल क्या पिक करोगे? आप वैल्यू ऑफ एल वो पिक करोगे सच दैट द प्रीफिक्स सम करस्पॉन्डिंग टू एल माइनस वन इज मिनिमम, राइट। और ये चीज आप ऑर्डर ऑफ वन में फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि वाइल इटरेटिंग ओवर आर आप एक मिनिमम वेरिएबल ले लो, राइट, और जो प्रीफिक्स सम ऑफ ऑल ऑफ द पोजिशंस हैं उसको अपडेट करते रहो, राइट। और आप वंस यू हैव दिस मिनिमम वैल्यू यू कैन फाइंड दिस थिंग इन ऑर्डर ऑफ वन। अब आपका n का फैक्टर चला गया, राइट, इसमें से n का फैक्टर चला गया क्योंकि हमने l को ऑर्डर ऑफ वन में फाइंड कर लिया। अब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी r पर इटरेट करने के लिए n और टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स दैट इज n log ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये कितना हो गया? n स्क्वायर log ऑफ mx। okay, so this is the final time complexity you have, and this will eventually pass because your constraints are small, order of 1000। so ये कितना हो जाएगा? 10⁶ इंटू log कितना होगा? log ऑफ 1000 हो जाएगा आपका 10, तो 10⁻7 है ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, एंड दिस विल इवेंचुअली पास। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन, राइट। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल वही किया है। एक बार इसको रीइटरेट कर देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया है। सबसे पहले के एलिस वैल्यू ऑफ के क्या पिक करना चाहेगी कि ऑब्वियसली शी वुड लाइक टू पिक ए वैल्यू ऑफ के दैट डिवाइड्स सम नंबर ऑफ इंटीजर्स इन नम्स अरे। और ऑप्टिमली क्या पिक करना चाहेगी कि शी वुड लाइक टू पिक ए वैल्यू ऑफ के सच दैट इट इज ए प्राइम डिविजर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दीज नंबर्स। सो हमने क्या किया, इस एक डी सेट लिया, उसमें सारे प्राइम डिविजर्स हमने ऐड कर दिए। अब हम ऑप्टिमली मतलब वन बाय वन वैल्यू ऑफ दिस प्राइम डिविजर के पिक करेंगे, राइट। वी विल पिक ए वैल्यू ऑफ के दैट इज ए प्राइम डिविजर फ्रॉम दिस सेट। अब हम एल को आर पर इटरेट करते हैं, राइट। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आर पर इटरेट करेंगे और ऑप्टिमली वैल्यू ऑफ एल फाइंड कर लेंगे, और जो स्कोर है वो फाइंड कर लिया हमने इस तरीके से। कैसे किया? प्रीफिक्स सम अरे बना ली सच दैट अगर नम्स ऑफ आई इज डिविजिबल बाय के तो पॉजिटिव ले ली इसकी वैल्यू, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू ले ली, और प्रीफिक्स सम अरे फाइंड कर ली। और हमने ये करंट स्कोर क्या होगा? करंट स्कोर होगा, करंट स्कोर का डिफरेंस क्या होगा? दैट इज दिस थिंग, स्कोर डिफरेंस। एक करंट स्कोर डिफरेंस क्या होगा? प्रीफिक्स सम ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ एल माइनस वन। और ये वाली वैल्यू आप ऑर्डर ऑफ वन में फाइंड कर लोगे कि आप जैसे जैसे इटरेट करते जाओगे आप एक मिनिमम वेरिएबल स्टोर कर लो, राइट। और उसको आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो उसको अपडेट भी करते रहो। तो ये चीज़ आपने ऑर्डर ऑफ वन में फाइंड कर ली। तो ये कंप्लीट थिंग आपने लीनियर टाइम में फाइंड कर ली, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। और टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स कितने थे आपके? एन लॉग मैक्स। तो इवेंचुअली आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट क्विकली। int n equals to nums dot size, or let's take the prime factors, primes, iterate over nums। और प्राइम्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी,
इधर कांस्टेंट ऑल्सो कांस्टेंट इट मोड डिफाइन कर लेते हैं 1 + 7 कांस्टेंट इंट एक नंबर डिफाइन कर लेते हैं मैक्स mx, that is 1 is 6 + 10, right? Maximum mx, which is the value of maximum in the nums. Okay, अब आप सीव लगाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ mx और सीव एल्गोरिदम इधर लिख दो। इसमें आप क्या कर रहे हो कि यू आर इटरेटिंग ओवर, you will first assign SPF to itself. Now you will iterate over I equals to 2 I into I should be less than equals to mx and I plus plus. If SPF of I not equals to I, this means this is a not a prime number, so just continue, otherwise iterate over and max. If SPF of j equals to j, in this case you will assign SPF of j equals to I. So this is how you have calculated your sieve algorithm. Once you have calculated your sieve, अब आप प्राइम्स कैलकुलेट कर लो कि while u is greater than 1, what you will do, you will insert the value of smallest prime factor, divide it by this value. Okay, now you have found your total distinct prime divisors. अब आप क्या करोगे, now what you will do is अब वन प्रीफिक्स समरी कैलकुलेट कर लो, प्रीफिक्स ऑफ p dot size वेक्टर ऑफ वेक्टर, हम प्रीफिक्स समरी कैलकुलेट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच प्राइम n+1। आप समझ पा रहे हो ना पीएस में क्या स्टोर कर रहे हैं, हम प्रीफिक्स सम अरे कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर ईच प्राइम, पहले से ही कर लेते हैं या फिर बाद में भी कर लेंगे, चलो इटरेट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। अब क्या कर रहे हो, फॉर वैल्यू ऑफ के इस पी पे इटरेट कर रहे हो, राइट? सो you know that your current value of k is picked up from this set, that is prime divisors। अब आप इसके लिए प्रीफिक्स सम अरे कैलकुलेट कर लो, एक आंसर वेरिएबल भी स्टोर कर लो इधर, राइट? और इसको मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, माइनस ऑफ मॉड। ओके, सो प्रीफिक्स सम अरे बना लो इधर, प्रीफिक्स सम वही रहेगा आपका i इक्वल्स टू 1 2, इस अरे पर इटरेट करो। आप क्या चेक करोगे कि इफ nums of, if this is divisible by k, तो आप क्या करोगे, प्रीफिक्स सम ऑफ i हो जाएगा आपका प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 प्लस नम्स ऑफ i-1। अदरवाइज क्या होगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो आप नेगेटिव में ले लो, इस वैल्यू को नेगेटिव में ले लो, इजी। अब आप क्या करोगे,
अब आप इटरेट करोगे आर पर, और आल्सो आप एक मिनिमम वैल्यू स्टोर करके चल लोगे, मिनिमम लेके वैल्यू लेके चल लोगे, राइट, फॉर दिस एल, राइट, मिनिमम वैल्यू वही लेके चल रहे हैं हम इधर, इसकी वैल्यू, और आर पर इटरेट कर लेते हैं। आर इक्वल्स टू 1 टू आर लेस देन इक्वल्स टू 1 आर प्लस प्लस। आप इधर क्या चेक करोगे, करंट आपका डिफरेंस, करंट मैक्सिमम सम कितना होगा जब वैल्यू ऑफ आर है, मतलब आर करंट की राइट इंडेक्स है, तो आपका करंट कितना होगा, करंट होगा आपका प्रीफिक्स सम ऑफ आर माइनस मिनिमम, ये तो आप कर रहे हो इधर। तो ये वैल्यू आपने करंट फाइंड कर ली। अब आप इसको मैक्सिमाइज करा दो, है ना, वैल्यू ऑफ के वैल्यू इनिशियली आप 0 ले लो। ओके, इफ योर करंट इज ग्रेटर देन के वैल्यू, करंट इज ग्रेटर देन आंसर, तो आप आंसर को अपडेट कर दो और के को भी अपडेट कर दो, के वैल्यू को भी, इजी। एट द एंड आपको क्या करना है, आपको एक बेस केस और देखना है कि आपका लेट्स से प्राइम जो सेट है वो एम्प्टी है। एम्प्टी किस केस में होगा, जब आपके सारे इंटीजर्स इन नम्स 1 होंगे, क्योंकि 1 का कोई प्राइम डिविजर तो होता नहीं, राइट। इन दैट केस आपका बेस केस क्या होगा कि आपको के की वैल्यू एटलीस्ट 2 तो लेनी ही पड़ेगी, राइट। सो इन दैट केस आपका आंसर क्या हो जाएगा, इफ p is empty, if there is no prime divisor, in that case you will have to pick any integer, let's say आपने 1 ले लिया, इंडेक्स 1, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर के वैल्यू विल बी 2, क्योंकि आप मिनिमम पिक करना चाहोगे, राइट, एंड योर आंसर विल बी, आप 0,0 रेंज सेलेक्ट कर लो, राइट। और उस केस में आपका जो आंसर क्या होगा वो नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ मतलब 1 ही है ऑब्वियसली, आपको पता ही है इस केस में। एम टी एक ही केस में होगा जब सारी वैल्यूज़ 1 1 1 1 होंगी, तो आप उस केस में किसी भी एक वैल्यू को पकड़ो, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक रेंज तो सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी, वो तो प्रॉब्लम में गिवन है, तो उस केस में आपका आंसर ये हो जाएगा। और आपको मोड लेना है इवेंचुअली, तो मोड -1 कर दो इसको, राइट। अब आपको रिटर्न करना है वैल्यू, क्या रिटर्न करनी है, आंसर इनटू की वैल्यू मोड, ये रिटर्न कर दो। लेट्स ट्राई टू रन इट। फर्स्ट we have 36, this is constant, $34, let's see what mistake we did here। ओके, हमने मैक्सिमाइज नहीं किया ना इस मिनिमम को, इसको मिनिमाइज भी, अपडेट भी तो कर देते हैं इस वैल्यू को, पी एस ओ आर से, समझ गए ना क्या किया है, मिनिमम को अपडेट भी तो करना है, इस आर की करस्पॉन्डिंग को अपडेट कर दो। First answer is 36, for second answer is 6, for third is okay, let's submit it। रन टाइम एरर, इंट लिया होगा हमने, इसको लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, या फिर 1 LL करा दो।
Okay, great. So let's move to the third problem. You are given this integer array nums, and your task is to find the maximum sum of subarray of nums, that is palindrome. At the end, you need to return this maximum sum of such a subarray. A subarray is contiguous non-empty sequence of elements within the array. A subarray is a palindrome if it reads the same forward and backward. So this problem statement is pretty simple. What you need to do is you need to find a subarray which is a palindrome and find its sum, right? So you need to return the maximum sum over all of the subarrays which are palindrome, and its time complexity it will allow is n log n for linear, right? बिकॉज 10⁵ है, तो लीनियर या फिर n log n ही अलाउड होगी इसमें. सिंपल, ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एक्चुअली, पैलिंड्रोम ओवर एन एरे. इस केस में आप क्या करते हो ना, इस केस में आप अच्छा इसको एक बार छोड़ो, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ो, आप इसको सिंपली कैसे सोल्व करते. इफ़ यू आर गिवन दिस प्रॉब्लम एंड यू डो नॉट हैव दिस कंस्ट्रेंट, तो आप क्या करते. सिंपल, आप हर एक सबरे पर इटरेट करते और यू विल चेक वेदर दिस सबरे इज पैलिंड्रोम और नॉट. अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसका सम फाइंड करते. तो ऐसी सबरे का आप हर एक सबरे के लिए करते ये चीज़, और एट द एंड यू विल रिटर्न द मैक्सिमम सम. इसमें कितना टाइम लगता, राइट? इसमें कितना टाइम लगता, आपको नम से दे रखिए, आप L और R, हर एक L और R पर इटरेट करते. यू विल चेक इफ़ इट इज़ ए पैलिंड्रोम, you will find its sum, and you will at the end you will find the maximum sum over all of the subarrays which are palindrome. तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है आपकी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इंटू n. कैसे, n स्क्वायर हर एक सबरे पर इटरेट करने के लिए, एंड टू चेक ईच सबरे वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा. तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपको, ऑर्डर ऑफ n³. ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी. बट इन दिस केस इट इज़ नॉट अलाउड. तो आपका ब्रूट फोर्स ऑर्डर ऑफ n³ है, तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू ऑप्टिमाइज इट. अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, कि ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. आपको अगर फाइंड करना है, लेट्स से you will what you will do is you will iterate over all of the indices. Let's say this is the index, right? So आप क्या करना, फाइंड करना चाह रहे हो ना, i ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए ज़्यादा. ओके, सो i, लेट्स से आप i इंडेक्स पे हो करंटली, इधर आपका i+1 है, i+2 है, i+3 है अप टू n. इधर भी आपका सिमिलर i-1 है, i-2 है, i-3 है. सिंपल है, अप टू 1 है. अब आप क्या करते हो ना, आप कोई भी इंडेक्स पर जाते हो, राइट? आप हर एक इंडेक्स पर इटरेट करते हो. अब ith इंडेक्स के लिए आप फाइंड करना चाह रहे हो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम सबरे यू कैन फॉर्म हुज मिडल एलिमेंट इज i. For now, just assume for the simplicity, let's assume your length of palindrome is odd, right? और इस केस में आप assume करोगे कि ith जो इंडेक्स है वो आपका मिडल एलिमेंट होगा. अब आप मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम फाइंड करना चाहते हो, तो उसके लिए लेट्स से यू विल डू बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च में क्या करोगे आप चेक करोगे कि इफ़ देर इज ए, आप बाइनरी सर्च पे बाद में आते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए हो, तो आप इसको सिंपल ही रखते हैं. अभी आपको मैंने बोल दिया कि आई आपका मिडल एलिमेंट है पैलिंड्रोम का. अब आप फाइंड कर सकते हो कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम कितना होगा. आप बोलोगे कि हाँ कर तो सकते हैं. ऑर्डर ऑफ 1 में फाइंड कर, ऑर्डर ऑफ n में फाइंड कर लोगे आप. कैसे, आप इटरेट करते जाओगे राइट साइड. लेट्स से आप पहले ये चेक करोगे कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं या नहीं, i-1 और i+1. फिर आप चेक करोगे कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ नम्स ऑफ i-2 और नम्स ऑफ i+2. फिर आप चेक करोगे, आप ऐसे बढ़ते जाओगे आगे
जब तक कि ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हैं। जैसे ही आपकी कोई वैल्यूज इक्वल नहीं होगी, आप वहाँ ब्रेक कर दोगे और आप बता दोगे कि ये वैल्यू मतलब ये जो लेंथ L है, सिर्फ L लेंथ ही आपकी इक्वल है, उससे आगे बढ़ रहे हो तो कोरस्पॉन्डिंग आपके एलिमेंट डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो आप बता दे रहे हो कि यार इससे आगे L और इससे पीछे L, ये जो टोटल 2L+1 लेंथ की पैलिंड्रोम है, ये हम बना पा रहे हैं विद द मिडल एलिमेंट एज आई। तो ये आपके लिए आपको कितना टाइम लगा? ऑर्डर ऑफ n लगा ऐसे फाइंड करने में। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसको कर सकते हो। कैसे? आप क्या करोगे ना, आप बाइनरी सर्च लगा दो। बाइनरी सर्च कैसे लगाओगे आप? बाइनरी सर्च पहली बात तो लगा क्यों सकते हो, क्योंकि आप एक चीज़ बताओ, आप 1 लेंथ फाइंड कर लोगे, इसके लिए ट्रू होगा। आप फिर 2 लेंथ कर लोगे, 3 4 5 अप टू लेट्स से कुछ कुछ है, तो आप लेट्स से 1 लेंथ की पॉसिबल है तो ट्रू है। सेकेंड लेंथ इज ऑल्सो पॉसिबल मीन्स ट्रू। 3 लेंथ ऑफ 3 लेट्स से पॉसिबल देन इट इज ट्रू। अब मान लो आप 4 लेंथ नहीं फाइंड कर पा रहे, मतलब i+4 आपका i-4 के इक्वल नहीं है। nums of i+4 इज नॉट इक्वल्स टू nums of i-4। इन दैट केस आप क्या करोगे कि ये जीरो है, कि भाई इस लेंथ की पॉसिबल नहीं है, फॉल्स। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इससे आगे हमें फॉल्स ही मिल रहा है। आगे की लेंथ पे हमें हमेशा फॉल्स मिलेगा। एक बार फॉल्स मिल गया ना, फिर आगे हमेशा फॉल्स मिलेगा। और जब तक ट्रू मिलता जा रहा है, इससे पहले सारे पक्का ट्रू होंगे, क्योंकि आप 3 लेंथ की फाइंड कर पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड लेंथ ऑफ 2। अब ये अगर कहीं भी आप पैटर्न बना पा रहे हो तो यू नो कि आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। बाइनरी सर्च किस पे लगाओगे? वैल्यू ऑफ एल पर लगाओगे। अब आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो वैल्यू ऑफ एल पर, और आप ऑर्डर ऑफ 1 में बता सकते हो मेरे को। लेट्स से मैंने आपको बोल दिया कि यार आप बताओ कि एल लेंथ की पैलिंड्रोम, मतलब 2L+1 लेंथ की पैलिंड्रोम पॉसिबल है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ कैसे पॉसिबल है, आप हाँ ऑर्डर ऑफ 1 में बता देंगे। कैसे बताएंगे? ऑर्डर ऑफ n में तो बता ही दोगे ना इटरेट करके, ऑर्डर ऑफ 1 में कैसे बताओगे? वो ऐसे बताओगे कि आप हैश फाइंड कर लो, इसका हैश फाइंड कर लो और आप इसका हैश फाइंड कर लो। अगर इन दोनों का हैश, इन दोनों सबरे का हैश अगर इक्वल है, देन यू कैन से दैट योर लेंथ ऑफ 2L+1 इज योर पैलिंड्रोम, राइट। और अगर उस केस में आप 1 रिटर्न कर दोगे मतलब ट्रू। अदरवाइज लेट्स से अगर इन दोनों का हैश इक्वल नहीं है तो आप बोल दो कि 0 मीन्स इट इज फॉल्स। सो आप इसको बाइनरी सर्च से ऐसे फाइंड कर लोगे। आप प्री कंप्यूट में क्या करोगे? हैश वैल्यूज फाइंड कर लो फॉर ईच ऑफ द सबअरे। बेसिकली हम प्रीफिक्स फ्री करेंगे, और आपने एक बार हैश वैल्यूज फाइंड कर ली, उसके बाद आप इजीली बता सकते हो। एक तो केस ये हो गया जब आई मिडल है। दूसरा केस ये भी हो सकता है ना, आई मिडल एक ही एलिमेंट मिडल में है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम इज ओड। दूसरा, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये भी हो सकता है ना कि आपकी लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम इवन हो। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप सिंपली यही करोगे कि i-1 और i इन दोनों को कंसिडर कर लो मिडल एलिमेंट्स। इसके बाद i+1 i+2 ये फाइंड करते जाओ, i-2 i-3, ये राइट। अब सिमिलर बाइनरी सर्च इसमें लगा देंगे। लेट्स से मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इधर l लेंथ है और इधर लेंथ है l है। आप बताओ कि 2L+2 पॉसिबल है या नहीं। आप बोलोगे कि ये तो बता देंगे इजीली। कैसे बताएंगे? इसका हैश फाइंड करो और इसका हैश फाइंड करो, अगर दोनों इक्वल हैं तो आप ट्रू रिटर्न करा दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करा दो कि मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये भी बाइनरी सर्च से आप फाइंड कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल फाइंड कर लोगे आप, और मैक्सिमम वैल्यू आपने एक बार फाइंड कर ली तो आप इस 2L+2 सब अरे का सम फाइंड कर ही लोगे। कैसे? प्रीफिक्स सम अरे से एक प्रीफिक्स सम अरे बना लो और उससे आप इसकी 2L+
2l+2 लेंथ की सब अरे का आपको सम मिल जाएगा। ऐसे आप इटरेट करते जाओगे आई पर, और आप हर आई के लिए ये चीज़ कैलकुलेट कर लोगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम, और आप आंसर को मैं अपडेट करते रहोगे, राइट। आंसर क्या स्टोर करेगा? मैक्सिमम सम ऑफ द पैलिंड्रोम अरे, राइट। ओके, सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया और कैसे कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी आप, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया ये तो लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन। n is your nums dot size, right? Okay, so we will calculate some of the values here. First, let's define mode, right? 1e9 हमने मोड डिफाइन कर लिया, राइट। अब हम हैश वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। दो टाइप, अच्छा इस चीज़ में हमें हैश ऑर्डर ऑफ वन में फाइंड करना है, हैश वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। सो इसके लिए हम दो टाइप के हैश स्टोर करेंगे, एक तो फॉरवर्ड हैश और एक बैकवर्ड हैश, राइट। सो फॉरवर्ड हैश आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। लेट्स से आप फॉरवर्ड हैश इसमें स्टोर कर लिया आपने, एक बैकवर्ड हैश इसमें स्टोर कर लिया आपने। तीसरी वैल्यू और क्या चाहिएगी आपको? एक पावर ऑफ 10, राइट, पावर ऑफ 10 आप इसमें स्टोर कर लिया। लेट्स से पी डब्ल्यू ही बोल दो इसको सिंपलिस्टिकली। पी डब्ल्यू में क्या स्टोर करोगे आप? पावर ऑफ 10, और इधर इनवर्स पावर ऑफ 10 आपको ये भी चाहिएगा हैश कैलकुलेट करने के लिए, ओके। और प्रीफिक्स सम, राइट, प्रीफिक्स सम आपको चाहिएगा ऑफ दिस अरे। आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए एक बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन भी फाइंड कर लो। बिन पावर क्या फंक्शन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए टू द पावर बी फाइंड कर, ये फंक्शन आपका ए टू द पावर बी फाइंड करेगा, राइट, मिनिमम टाइम में। तो आप बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन की हेल्प से इसको लॉग ऑफ बी में फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? चलो देखते हैं। इसको 1 से इनिशलाइज कर दिया, वाइल बी इज ग्रेटर देन 0, इफ बी means the last bit is set. In this case what you will do, you will multiply it by a and update the value of a, राइट शिफ्ट कर दो, मतलब लास्ट बिट उड़ा दो इसकी, रिटर्न द आंसर। इधर आप इनवर्स ऑफ 10, इनवर्स ऑफ 10 क्या होगा? 10 टू द पावर mod -2, ओके। अब आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, 1 to n, ओके। सो फॉरवर्ड हैश ऑफ आई क्या होगा? फॉरवर्ड हैश ऑफ आई होगा आपका फॉरवर्ड हैश ऑफ आई -1 प्लस एक इधर एक फॉरवर्ड हैश ऑफ आई होगा, फॉरवर्ड हैश ऑफ आई -1 इंटू नम्स ऑफ आई इंटू आई-1 क्यों किया? क्योंकि ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग स्टोर कर रहे हैं हम इधर, तो नम्स ऑफ आई-1 इंटू पावर ऑफ आई, ओके। और पावर इसको भी इनिशलाइज कर देते हैं, पावर ऑफ 0 मतलब 10 टू पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। इनवर्स ऑफ इनवर्स पावर ऑफ 10, इनवर्स पावर ऑफ 10 टू पावर 0 कितना होगा? वो भी 1 ही होगा,
ओके, सो सबसे पहले आप पावर को ही अपडेट कर दो, क्योंकि वी रिक्वायर लेटर पावर ऑफ आई माइनस वन इंटू 10 mod इनवर्स पावर ऑफ आई, ये भी सिमिलरली इनवर्स पावर ऑफ इंटू इनवर्स ऑफ 10 mod। आप प्रीफिक्स सम भी कैलकुलेट कर लो, प्रीफिक्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन प्लस नम्स ऑफ आई माइनस वन। आपका फॉरवर्ड हैश कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही आप बैकवर्ड हैश भी कैलकुलेट कर लोगे। बैकवर्ड हैश कैसे कैलकुलेट करोगे, बैकवर्ड हैश ऑफ आई ये आप कैलकुलेट करोगे ऐसे, आई माइनस वन प्लस बैकवर्ड हैश ऑफ आई माइनस वन इंटू 10 प्लस नम्स ऑफ आई माइनस वन। ओके, सो आपने दोनों हैश कैलकुलेट कर ली, दोनों हैश वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, आई और इनवर्स पावर ये भी अपडेट कर दिया। ओके, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब आ जाओ मेन चीज़ पर कि आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ, उससे पहले आप कुछ हेल्पर फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आपको फॉरवर्ड हैश मेरे को बताना है, फॉरवर्ड हैश बताना है एल टू आर के बीच में। तो आप वो कैसे बताओगे, फॉरवर्ड हैश फ्रॉम एल टू आर क्या होगा आपका, एच एस माइनस फॉरवर्ड हैश ऑफ एल माइनस वन। ये सफिशियंट है क्या, फॉरवर्ड हैश। अब आपको इसको इनवर्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनवर्स 10 टू द पावर कितना, लेट्स से आपका एल इक्वल्स टू वन है तो आपको जीरो से करना पड़ेगा, तो एल माइनस वन। ओके, ये आपका हो गया। सिमिलर हम बैकवर्ड हैश के लिए भी कर लेंगे। बैकवर्ड हैश के लिए हेल्पर फंक्शन बना देते हैं इधर, बैकवर्ड हैश ऑफ एल टू आर कितना होगा, बैकवर्ड हैश ऑफ एल टू आर होगा आपका, बैकवर्ड हैश ऑफ आर माइनस बैकवर्ड हैश ऑफ एल माइनस वन, यही होगा क्या, बैकवर्ड हैश ऑफ आर माइनस बैकवर्ड हैश ऑफ एल माइनस वन। हाँ, इसका यही होगा। ओके, अब आप हम मेन हमारे प्रॉब्लम पर आते हैं कि हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम विद मैक्सिमम सम फाइंड करना है। तो एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जो कि स्टोर करेगा द मैक्सिमम सम ऑफ पैलिंड्रोमिक सबअरे। ओके, अब इटरेट करते हैं इस पर, आई पर, आई इक्वल्स टू वन टू आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब हम आई को मिडिल एलिमेंट लेंगे और वी आर एज्यूमिंग कि वी आर सोल्विंग द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस कौन सा है, जब हमारा लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम ओड है।
राइट। सो इस केस के लिए लेट्स बाइनरी सर्च करते हैं। मिनिमम लेंथ आपकी 0 हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, n हो सकती है। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम लेंथ होगी i-1, या फिर मतलब प्रीफिक्स कितना मैक्सिमम लेंथ का ले सकते हो आप? i-1 का ही ले सकते हो ना, ऑफ कोर्स। और सफिक्स कितना ले सकते हो? n-i का ले सकते हो, +1, क्योंकि r एक्सक्लूसिव है और l इंक्लूसिव है। ये बाइनरी सर्च लगा रहे हैं हम इधर। इफ फॉरवर्ड हैश ऑफ इफ फॉरवर्ड हैश ऑफ i+1 से लेकर i प्लस मिड तक इज इक्वल्स टू बैकवर्ड हैश ऑफ i माइनस मिड से लेकर i-1 तक। If this is the case, then we know that this is a palindrome of length mid, right? Otherwise, if it is not possible, तो r को डिक्रीज कर दो। अब इधर हमें पता लगे कि हमें l लेंथ की पैलिंड्रोम मिल गई है, राइट? ये l लेंथ हमें पता लग गई इस बाइनरी सर्च से। अब हम सिंपली वही करेंगे, आंसर फाइंड कर लेते हैं इसका, दैट इज सम ऑफ दिस सबरी ऑफ लेंथ 12+1। आंसर इक्वल्स टू, मैक्सिमाइज भी करा दो आंसर को, क्या होगा? प्रीफिक्स सम ऑफ योर i प्लस l माइनस prefix sum of, this is prefix sum i minus l minus 1। समझ गए? ये जस्ट हमने प्रीफिक्स सम फाइंड किया है i माइनस एल से लेकर i प्लस एल तक की सबरे का, क्योंकि एक पैलिंड्रोम है। ये हमने पता लगा लिया। सिमिलर थिंग हम ये सेकंड केस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ये वाला जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द पैलिंड्रोम इज इवन, राइट? सो लेट्स कॉपी पेस्ट, सिमिलर ही होगा, कुछ कुछ डिफरेंस होगा। अब इस केस में i-1 और i को आपने ले लिया, अब ये l फाइंड करना चाह रहे हो, i-1 और i को ले लिया। इससे पहले आप एक चीज़ ये भी देख लो कि इफ i-1 एग्जिस्ट भी करना चाहिए एंड nums of i should be equals to nums of i should be equals to nums of i-1। समझ रहे हो ना ये i-1 क्यों गया? क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडिसेस है nums of a में, और हम इधर 1 बेस्ड इंडिसेस ले रहे हैं। तो आपका nums of मतलब ith और i-1th एलिमेंट आपका इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज हम कंटिन्यू करा देंगे। इफ i is less than 1 or these two values are not equal, in that case we will just continue, right? because पैलिंड्रोम होने के लिए ये दो मिडल वैल्यूज भी तो इक्वल होनी चाहिए ना। सो ये केस हमने चेक कर लिया। इफ दिस इज नॉट ट्रू, then we will return, we will continue, otherwise we will also try to find the value of this maximum length of palindrome। so चलो वो करते हैं। अब आपका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है वैसे लॉजिकली? मैक्सिमम लेंथ हो सकता है आपका i-2, और इधर आपका हो जाएगा n-i, राइट? अब आप इधर क्या फाइंड करोगे? फॉरवर्ड हैश i+1 से लेकर i प्लस मिड तक, ओके। और इधर आप फाइंड करोगे i माइनस मिड -1 से लेकर i-2 तक। ग्रेट।
और सिमिलरली आप ये फाइंड कर लो कि सम इधर क्या आई प्लस एल माइनस आई माइनस एल माइनस 2, राइट। Okay, so this is our answer we will return here. Let's run it. Integer overflow. Where is it? Okay, let's take these values long. कोई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, मतलब इधर तो नहीं जा सकता, आते हैं, इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, इधर कोई दिक्कत हो सकती है मुझे लगता है। हमने ये जो मैक्सिमम लेंथ है कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ हो सकती है आपकी आई माइनस वन प्रीफिक्स हो सकता है और एन माइनस आई, ये तो सही है। इधर भी आप सही कर रहे हो, आई प्लस वन और आई प्लस वन से लेकर आई प्लस मिड तक, इधर भी आप सही कर रहे हो, आई माइनस मिड से लेकर आई माइनस वन तक, राइट। एंड फिर आप क्या करोगे, अपनी प्रीफिक्स कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, ये भी सही है। इफ आई इज लेस देन वन और nums of I not equals to nums of I minus 2, इधर हमें चेक करना पड़ेगा I लेस देन 2, लेस देन 2 तभी तो एक इंटीजर है, राइट। फॉर सेकंड केस आंसर शुड बी, अभी भी कुछ कुछ मिस कर रहे हैं हम इधर। सो लेट्स सी व्हाट वी आर मिसिंग हियर। हमने ये चीज़ तो सही से कैलकुलेट करी है, prefix of I सन गुड, this is also correct, this is also correct. ये भी सही है। This also looks correct to me, and this thing f हैश ऑफ आई निकालना है ना, तो इधर आई माइनस वन यूज़ करना है। इधर आप जब माइनस कर रहे हो ना, तो इसको पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, आर माइनस एल प्लस वन से। सो एक्चुअली दिस वॉज अ मिस्टेक हेयर, हमें इसको पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा। ये मोड क्यों ऐड किया है, बिकॉज वी वांट टू मेक इट पॉजिटिव, राइट। सो लेट्स सबमिट इट नाउ। Great. So this was it for this video.
I hope you got I hope you got the solutions. And if you are not able to understand this last problem, I would assume that you don't know rolling hash. So I will recommend you to first read about what is rolling hash and try to implement rolling hash on simple strings and simple nums array and try to understand its use cases. Then once you know what is rolling hash, then come to this problem, and then you will be able to easily understand the solution, right? So yeah, that was it for this video. Let's meet in the next video. Until then, have a nice day. Thank you.